ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप साई का प्यार जीवन आधार के तहत एक मनोरम भेंट वार्ता एवं गान सरिता के तहत एक गीत सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 5 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, అయితే కొన్ని సమయములందు ఈ క్షమను అతి జాగ్రత్తగా మనము విచారించి వినియోగించాలి. జగత్తులో జీవకోటికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క సహాయకారమైనటువంటిది వృక్షము, నదులు, గోవులు. వృక్షములు, నదులు, గోవులు లేకపోతే మానవత్వమే క్షీణిస్తుంది. परंतु हमें इस क्षमा का प्रयोग कुछ परिस्थितियों में अच्छी तरह से सोच विचार कर करना चाहिए। इस जगत में सभी प्राणियों का जीवनाधार पेड़, नदियाँ और गौएं हैं। यदि पेड़, नदियाँ और गौएं ही न हों तो मानव जाति ही विनष्ट हो जाएगी। అయితే వృక్షముని ఎంతమంది వచ్చి ఎన్ని కొమ్మలు కొట్టి ఎన్ని రెమ్మలు కొట్టి ఎన్ని విధములుగా కూడా దాన్ని హింసించినప్పటికీ తన క్రింద చేరినటువంటి వానికి నీడనిచ్చి తీయని ఫలములనిచ్చి వారిని అనేక విధముల ఆనందాన్ని చేకూరుస్తుంది. అపకారము చేసినటువంటి వ్యక్తులకే ఇవి ఉపకారం చేస్తూ వచ్చాయి వృక్షములు. चाहे कितने ही लोग क्यों न आएं और वृक्षों की डालियों और टहनियों को तोड़ ही क्यों न डालें, परंतु अपने नीचे पहुंचने वालों को छाया देकर और मीठे फल देकर वृक्ष अनेक प्रकार से उन्हें आनंदित ही करते हैं। ये वृक्ष अपकार करने वालों का उपकार ही करते आ रहे हैं। ఇంకా నదులు, ఈ నదులను అనేక విధములుగా త్రిప్పి అనేక విధములుగా అశుద్ధం చేసి అనేక విధములుగా ఉపయోగించి ఏ విధమైనటువంటి కృతజ్ఞత కూడాను తాను అందించకపోయినప్పటికీ ఈ నదులు ఏమాత్రం కూడాను తమ యొక్క ఓర్పును కోల్పోక జీవరాశులకు ఆనందమునిచ్చి తన గమ్యమైనటువంటి సముద్రాన్ని చేరటానికి ప్రయత్నంతోనే ఉంటున్నాయి. జలము జీవులకు ప్రాణం. ప్రాణ సమానమైనటువంటి జలమును ఏ విధమైనటువంటి యొక్క దుర్వినియోగంకారి సద్వినియోగంకారి చేసినప్పటికీ ఈ జలం ఏమాత్రం కూడాను తమ యొక్క స్వభావమును మార్చుకొనుటలేదు. अब नदियों की बात। इन नदियों को अनेक प्रकार से मोड़कर उन्हें प्रदूषित कर उनका पूरा उपयोग करने के बाद भी जरा सी कृतज्ञता के न दर्शाने पर भी अपने संयम से विचलित न होती हुई प्राणियों को आनंद प्रदान करती हुई ये नदियाँ अपने गंतव्य समुद्र तक पहुँचने के लिए ही प्रयत्नशील हैं। जल जीवों के लिए प्राण तत्व है। प्राण समान इस जल का चाहे सदुपयोग करें या दुरुपयोग, परंतु यह अपने स्वभाव को बिल्कुल नहीं बदल रहा है। ఇంకా గోవులు తాము కన్నటువంటి బిడ్డల నోర్లైనా కట్టి తమ పాలను, తమ క్షీరమును, తమ మధురమైనటువంటి శక్తిని జనులకు అందిస్తూ వచ్చినాయి. ఈ యొక్క గోవును హింసించినప్పటికీ
తన యొక్క చీరమును మధురమైనటువంటి చీరంగానే అందిస్తూ వచ్చాయి, కానీ ఇది కేవలము ఒక చేదు రకమైనటువంటి యొక్క చీరమును అందించటం లేదు. ఈ విధంగా అపకారం చేసినటువంటి యొక్క జీవులకి ఉపకారం చేస్తూ వచ్చాయి ఈ యొక్క జీవులు. अब गौएं, ये गौएं अपने बछड़ों को भी अपने दूध से वंचित रखती हुई अपने दूध को, अपने क्षीर को, अपनी मधुर शक्ति को लोगों को देती आ रही हैं. बहुत तंग किए जाने पर भी गायें अपने दूध को स्वादिष्ट रूप में दे रही हैं. कभी भी दूध को कड़वा नहीं कर रही हैं. स्वयं का अपकार करने वालों का भी ये प्राणी उपकार ही कर रहे हैं. అట్లని అన్నింటి ఎందుకును మనం ఉపకారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు. సమయ సందర్భాలను కూడాను కొంత విచారించుకొని దాని యొక్క విచక్షణ జ్ఞానమును కొంతవరకు వినియోగించుకొని ఈ యొక్క క్షమను మనం ఉపయోగించుకోవాలి. మీకు చరిత్రలో చాలా వరకు తెలిసినటువంటి విషయం. ऐसा मानकर हमें हर समय उपकार ही नहीं करना चाहिए. समय एवं संदर्भ के अनुसार अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए हमें अपनी क्षमा का उपयोग करना चाहिए. तुम सबको इतिहास की यह बात अच्छी तरह से मालूम है. పృథ్వీరాజును గోరి మహమ్మద్ అనేక విధములుగా కూడాను హింసిస్తూ వచ్చాడు. 17 పర్యాయములు ఈ పృథ్వీరాజు రాజ్యం పైన దండెత్తి వచ్చాడు గోరి మహమ్మద్. కేవలము దండెత్తి రావటమే కాకుండా ఆ దేశం నందుండినటువంటి విలువైనటువంటి వాటినంతా ధ్వంసం చేస్తూ వచ్చాడు. సిరి సంపదలను దోచుకున్నాడు. అనేక విధమైనటువంటి నష్ట కష్టములకు గురి చేశాడు. ఇన్ని చేసినప్పటికీ పృథ్వీరాజు అతని యొక్క ప్రార్థనను అంగీకరించి అతన్ని క్షమించి వెనుక పంపుతూ వచ్చాడు. పట్టుపడినప్పటికీ అతన్ని ఏమాత్రం కూడాను హింసించక క్షమించి వెనుక పంపుతూ వచ్చాడు పృథ్వీరాజు. पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने बहुत तंग किया. मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के राज्य पर 17 बार आक्रमण किया. आक्रमण ही नहीं किया बल्कि उस राज्य की बहुमूल्य वस्तुओं को विनष्ट कर दिया, संपत्ति को लूट लिया, अनेक प्रकार से कष्ट और हानि पहुंचाई. इतना करने पर भी उसकी प्रार्थना पर पृथ्वीराज उसे क्षमा कर लौटाते ही रहे. उसके बंदी बनाए जाने पर भी पृथ्वीराज उसे तंग किए बिना क्षमा करके लौटाते ही रहे. ద్రౌపది చెప్పినట్టుగా పృథ్వీరాజు యొక్క స్వభావము చాలా ఉత్తమమైనటువంటి యొక్క స్వభావము. ఎలాంటి వారిని మనం క్షమించాలి అనేటువంటి విషయము అశ్వత్థామను పట్టి తెచ్చినప్పుడు ద్రౌపది అర్జునునికి బోధించింది. ఇక్కడ పృథ్వీరాజు కూడాను అదే విధంగానే ఈ గోరీ మహమ్మద్ను క్షమిస్తూ వచ్చాడు. जैसे कि द्रौपदी ने कहा, पृथ्वीराज का स्वभाव अत्यंत उत्तम कोटि का रहा. अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाए जाने पर द्रौपदी ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि किस प्रकार के लोगों को क्षमा करना चाहिए. इसी प्रकार यहां भी पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को क्षमा करते आए. వెరచిన వాని, దైన్యమున వేదురు నొందిన వాని, నిద్రమై మరచిన వాని, సౌఖ్యముగా మధ్యము త్రావిన వాని, భగ్నుడై పరచిన వాని, సాధుజన భావం వానిని కావు మంచువా చరచిన వాని, కామినుల స్త్రీలను చంపుట ధర్మము కాదు పలుకున. అదే విధంగానే గోరీ మహమ్మద్ శరణార్థుడై నన్ను క్షమించాలి, నన్ను రక్షించాలని కోరుకోవటం చేత ఆ పరిస్థితి ఎందుకు ఉండినప్పటికీ ఈ పృథ్వీరాజు క్షమించి వెనుక పంపించాడు. द्रौपदी ने कहा, हे फल्गुण, डरे हुए को, दीनता में पड़े हुए को, गहरी नींद सोने वाले को, शराब पिए हुए को, पूर्णतः पराजित को, सज्जनों को, शरणार्थी को और स्त्रियों को मारना धर्म नहीं है. मोहम्मद गोरी के शरणार्थी होकर मुझे क्षमा करें, मेरी रक्षा करें जैसी प्रार्थना करने के कारण वैसी परिस्थिति में भी पृथ्वीराज ने उसे क्षमा कर लौटा दिया.
కానీ దీనికి కృతజ్ఞత లేక పూర్తి కృతజ్ఞుడిగా మారిపోయాడు ఓరి మహమ్మద్. తిరిగి 2వ సంవత్సరమే తిరిగి పృథ్వీరాజు పైన దండెత్తి వచ్చి అనేక విధములుగా కుట్రలు పన్ని మోసములు చేసి తన యొక్క దగ్గర వారి వల్లనే అతనిని చిక్కించుకొని దక్కించుకొని అతని కన్నులు తీసివేశాడు. కనుక ఇలాంటి త్రాసుపాము స్వభావం కలిగినటువంటి వారిని యందు మనము క్షమ అనేటువంటిది అమితంగా మనం ఉపయోగించరాదు. लेकिन इसके प्रति कोई कृतज्ञता न जताते हुए मोहम्मद गोरी पूरी तरह कृतघ्न हो गया. अगले ही वर्ष उसने फिर से आक्रमण किया और पृथ्वीराज के निकट संबंधियों से मिलकर षड्यंत्र रचा और उन्हें बंदी बनाकर उनकी आंखें निकलवा दीं. जहरीले सांप जैसे इस प्रकार के स्वभाव वालों के साथ अधिक क्षमा का व्यवहार नहीं करना चाहिए. తెలుగులో చెప్పుతారు, తుమ్మ చెట్టుకు నీరు పోసినా పాముకు పాలు పోసినా ప్రమాదము తప్పదు అంటారు. కనుక మన యొక్క ఓర్పు ఇలాంటి కృతజ్ఞులపైన మనం ఏమాత్రం కూడా ఉపయోగించరాదు. ఈ సమయ సందర్భాన్ని కూడా పురస్కరించుకొని ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు, పరోపకార సంబంధమైన మార్గమునందు, పరమార్థిక తత్వమునందు ఈ యొక్క ఓర్పును అమితంగా మనం సాధించాలి. इसीलिए तेलुगु में कहा जाता है कि बबूल को पानी से सींचना और सांप को दूध पिलाकर पोसना खतरे की बात है. अतः ऐसे कृतघ्न व्यक्तियों के प्रति हमें संयम नहीं दर्शाना चाहिए. हमें समय एवं संदर्भ के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग में, परोपकार के मार्ग में और पारमार्थिक मार्ग में इस संयम का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए. జీసస్ దగ్గర 12 మంది ప్రధానమైన శిష్యులు ఉండేటువంటి వారు. కానీ తన శిష్యులే అని విశ్వసించి అనేక విధములుగా వారిని రక్షించి వారిని పోషించి ఆదరించి ప్రేమించి అనురాగంతో అండజేర్చుకున్నటువంటి శిష్యుల లోపల కూడాను జూడాస్ అనేటువంటి వాడు ధనమునకు లొంగి గురుద్రోహమునకే పాల్పడ్డాడు. అట్టి జూడాను కూడాను క్షమించాడు జీసస్. ईसा मसीह के पास 12 प्रधान शिष्य रहते थे. उन्हें अपना शिष्य मानकर अनेक प्रकार से उनकी रक्षा कर, उनका पोषण करते हुए, उनका आदर करते हुए, उनके प्रति प्रेम जताते हुए, उनके प्रति आत्मीयता का व्यवहार करने पर भी उनमें जुडास नामक शिष्य पैसों की लालच में पड़कर गुरुद्रोह पर उतारू हुआ. वैसे जुडास को भी ईसा मसीह ने क्षमा कर दिया. కనుక మనకు అపకారం చేసేటువంటి వ్యక్తులను మనం ఏమాత్రం కూడా దూషించకపోయినప్పటికీ దైవమా వీరికి తగినటువంటి ఒక శిక్ష విధించమని ప్రార్థన కూడా చేయరాదు. కారణం ఏమనగా తన దోషమే అతన్ని హింసిస్తుంది. మనం ప్రార్థన చేసి దైవంతో ఇంకొక శిక్షను ఇప్పించవలసిన అవసరం లేదు. ఎవరు చేసినటువంటి కర్మ వారు అనుభవించక తప్పదు. हमें अपकार करने वाले की निंदा न करते हुए यह भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हे ईश्वर, इन लोगों को सही सजा दो, क्योंकि उसका दोष ही उसे सजा देगा. अतः ईश्वर से प्रार्थना कर उसे और एक सजा दिलाने की आवश्यकता नहीं है. जो कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है. ఒక రామాయణం నందు కూడాను మహాభారతం నందు కూడాను ఇలాంటి చిన్న చిన్న కొన్ని ఓర్పును కోల్పోయినటువంటి వ్యక్తుల లోపల అనేక దోషములు కూడాను నిరూపిస్తూ వచ్చింది. ఎవరు చేసిన కర్మ వారు అనుభవింపక ఏరికైన తప్పునన్నా ఏనాడు ఏ తీరు ఎవరు చెప్పగలరు, అనుభవించుట సిద్ధమన్నా. అలనాటి పాండవులు ఆకులను మిల్మేసి అడవి పాలైపోయిరన్నా. రాములంతటి వాడు రమణి సీతను బాసి పామునుని వలె ఏడ్చెనన్నా. తొందరపాటు వల్లనే ఈ విధమైనటువంటి ఫలితములంతా లభిస్తూ వచ్చాయి. रामायण और महाभारत में भी संयम खो देने के कारण उत्पन्न दोषों का वर्णन छोटी छोटी घटनाओं में हुआ है. कर्म किया है तो फल भोगना भी निश्चित. कब, कैसे और कहाँ है सबको अवश्य. कंद मूल खा जंगल में ठहरे पांडव, सीता से बिछुड़ पामर सम रोया राम. जल्दबाजी के कारण ही ऐसे परिणाम प्राप्त होते रहे.
ఎవరో చాకలివాడు ఏమో అన్నాడని, మూర్ఖుడైనటువంటి వ్యక్తి ఏదో దూషించాడని విన్న తక్షణమే సీతను అడవికి పంపించాడు. ఓర్పును కోల్పోయాడు. అయితే దైవ విషయం లోపల దీనికి అంతరార్థములు అనేకంగా ఉంటుంటాయి. కానీ ప్రాపంచికంగా లౌకికమైనటువంటి ఒక జగత్తును విచారించినప్పుడు ఓర్పును కోల్పోవటం చేతని ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అని అర్థమవుతుంది. किसी धोबी के कुछ कहने पर, एक मूर्ख के निंदा करने पर संयम खोकर राम ने सीता को जंगल में भेज दिया। परंतु ईश्वर के संदर्भ में इसके कई आंतरिक अर्थ होते हैं, लेकिन लौकिक स्तर पर, सांसारिक संदर्भ में विचार करने पर समझ में आता है कि संयम खो देने के कारण ही ऐसे परिणाम घटित हुए हैं। కృష్ణుడు ఎన్ని బోధించినప్పటికీ, సోదరులైనటువంటి యొక్క పాండవులు ఎన్ని విధమైనటువంటి చెప్పినప్పటికీ తాను ఆ యొక్క దీనిని కోల్పోయి యుద్ధము లోపల లేక ఈ జూదములు ఆడేటువంటి విషయం లోపల ధర్మరాజు బలహీనుడయ్యాడు. అందువలనని అనేక విధమైనటువంటి కష్టములకు గురి కావాల్సి వచ్చింది. కనుక ఈ ఓర్పును కూడాను సమయ సందర్భానుసారంగా విచక్షణ జ్ఞానమును కొంతవరకు వినియోగించి ఈ ఓర్పును ఉపయోగించుకోవాలి. श्री कृष्ण के कई उपदेश देने और भाइयों द्वारा कई प्रकार से समझाने पर भी अपनी दुर्बलता, जुआ खेलने के संदर्भ में संयम खो देने के कारण युधिष्ठिर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विवेक बुद्धि का उपयोग करते हुए समय और संदर्भ के अनुसार इस संयम का उपयोग करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। सभी श्रोताओं को एक बार पुनः सप्रेम साई राम। गान सरिता की संगीतमय प्रस्तुति में आज सुनेंगे हर पल भगवान के साथ रहने की हृदय से निकली प्रार्थना के मीठे प्रेम पगे स्वर, जिसके बोल हैं, साथ रहो तुम मेरे हरदम, चाहे खुशी हो या गम। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। साथ रहो तुम मेरे हरदम, साथ रहो तुम मेरे हरदम, चाहे खुशी हो या गम। रू 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 है हमारी खुश नसीबी, आए हो तुम आज यहाँ। है तुम्हारे दम से अपनी ये जमीन और आसमां, कह दो तो ले आए स्वर्ग यहाँ। कह दो तो ले आए स्वर्ग यहाँ। दिल में लेकर उत्सानुपम ज्योति लेकर आओ चले हम। दिल में लेकर उत्सानुपम।
जीवन का सवेरा, तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे, हर सांस तुझको याद करेंगे। पर याद मेरी सुन लो ओ साई, सुन लो ये दिल की पुकार, दोनों जहां से हमको है प्यारा तुम्हारा ये प्यार, ये प्यार। दिल में लेकर उत्साह अनुपम, ज्योति लेकर आओ चले हम, दिल में लेकर उत्साह अनुपम, ज्योति लेकर आओ चले हम। साथ रहो तुम मेरे हरदम, साथ रहो तुम मेरे हरदम, चाहे खुशी हो या गम। रू 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 अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। ये श्री सत्य साई प्रेम वाणी का प्रशांति निलयम से प्रसारण है। दिल में जब ईश्वर का वास हो जाता है तब कुछ और के लिए स्थान ही नहीं रह जाता, फिर हर पल ईश्वर के साथ की ही कामना रह जाती है। इस गीत में दिल में बड़े ही उत्साह के साथ स्वामी के विद्यार्थियों द्वारा भगवान का साथ मांगा गया है। प्रशांति निलयम में आयोजित होने वाले वार्षिक खेल व सांस्कृतिक सम्मेलन में ज्योति को प्रज्वलित करने की परंपरा इस गीत में झलकती है और इस परंपरा के पीछे छिपी प्रभु प्रेम व प्रभु के प्रति समर्पण की भावना भी झलक उठी है। जय साई राम। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। स्वामी कहते हैं फर्स्ट बी देन डू एंड देन टेल। पहले अच्छे बनो, दूसरा अच्छा करो और फिर लोगों को अच्छाई के बारे में बताओ। पुट्टपर्ती में जब नारायण सेवा भी करनी होती थी तो सबसे पहले नारायण को अपने हाथ से भगवान जाकर के भोजन देते थे। मान लो वह उदाहरण दे रहे हैं सब मानव जाति के लिए कि सेवा परमो धर्मः, सेवा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। देखिए मैं खुद मनुष्य रूप में आया हूं तो सबसे पहला भोजन जो है मैं नारायण को अपने हाथ से दे रहा हूं। तो ऐसी ही घटना मुझको याद आन पड़ी है जिसमें स्वामी का एक बहुत सुंदर पहलू देखने को मिलता है कि कितना विराज और कितना विराट हृदय है और इस हृदय में कितना प्रेम मानस मात्र के लिए, भगवान के लिए है, हर मानव मात्र के लिए। घटना काफी पुरानी है, यह भी 1984 की बात है। तो मुझको ध्यान है एक दिन जब भी दो पर्व बहुत बड़े होते थे उन दिनों में। सबसे बड़ा पर्व होता था जन्मोत्सव का और उसके बाद दशहरे का पर्व सबसे बड़ा होता था। दशहरे का पर्व इसलिए बड़ा होता था क्योंकि वहाँ वेद सप्ताह यज्ञ होता था और उसकी पूर्णाहुति में दशहरे के पर्व पर भगवान साक्षात बैठ करके पूर्णाहुति अर्पण करते थे अग्नि में। तो मुझको याद है दशहरे का दिन था, हम सब लोग बहुत उल्लास के साथ और बहुत उत्साह के साथ
आगे आगे पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे और यज्ञ चल रहा था। स्वामी का इंतजार कर रहे थे। स्वामी किसी भी पल आने वाले थे और स्वामी उस समय एक जुलूस में आते थे जिसके आगे आगे नादस्वरम चलता था। वेदोच्चारण करते हुए बच्चे आगे आते थे और पीछे स्वामी को लेकर के अपने साथ जुलूस में वार्डन हैं, दूसरे लोग हैं, आश्रम के लोग हैं, कुछ प्रतिष्ठित भक्तगण हैं, वे स्वामी को जुलूस में लेकर के आया करते थे। तो अचानक स्वामी का जुलूस आने को हुआ तो हमने क्या देखा कि जो आश्रम के मैनेजर हैं श्री कुटुम्बराव, वो एक ब्राह्मण जैसे दिखते हुए व्यक्ति को लेकर के आए जो दिखने में काफ़ी कमज़ोर और पतला दुबला लग रहा था। उसके बड़े बड़े केश थे कंधों तक के, शक्ल से कलाकार जैसा दिख रहा था। उसने बिल्कुल नई सिल्क की धोती पहनी हुई थी और नया सिल्क का एक क्रीम कलर का अंग वस्त्र पहना हुआ था और हमें लगा शायद कोई पंडित हो सकते हैं, तो उनको लेकर के आए और बहुत आदर पूर्वक जहां स्टूडेंट्स बैठे थे उसके भी आगे उनको बिठा दिया। तो हम समझे कि कोई स्वामी के वीआईपी गेस्ट होंगे कि जिनको कुटुम्बराव साहब खुद लेकर के आए हैं, और उनको देखा और भूल गए हम। और उसके बाद स्वामी आ गए तो स्वामी को देखने में, निहारने में और वो जुलूस का जो एक दिव्य वातावरण बनता है उसका आनंद लेने में मग्न हो गए। अब भगवान ने पूरी पूर्णाहुति करी। उस पूर्णाहुति के उपरांत शाम को स्टूडेंट्स ने बहुत सुंदर भजन गाए थे, जो भजन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था। सब स्टूडेंट्स को गाने का मौका मिला। वहाँ वृंदावन और पुट्टपर्थी के छात्रों ने मिलकर प्रस्तुति दी। स्वामी खुद झूले में बैठते थे जब गायन चल रहा होता था और दशहरे का पर्व समाप्त हो गया। अगले दिन दशहरे के हम सब छात्र शाम के वक्त स्वामी के दर्शन करने के लिए जाने वाले थे तो अचानक वार्डन ने हम सबको मीटिंग के लिए बुलाया और कहा कि आज सुबह जब मैं दशहरे के बाद दर्शन करने के लिए स्वामी के गया तो स्वामी ने मुझको बुलाया और कहा कि अरे भाई, क्या हो गया है तुम्हारे छात्रों को? मैं तुम्हारे छात्रों के हॉस्टल में आना चाहता हूं, तुम्हारे छात्र मुझको बुला ही नहीं रहे हैं, मुझे इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं, मुझे न्योता ही नहीं दे रहे हैं। तो आप सब लोग छात्र जब आज शाम को जाएंगे तो भगवान को बुलाइए। तो हम सब में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी कि हम स्वामी को 10 या 12 बार बुलाते थे कि स्वामी आप हॉस्टल में आइए, हमारे साथ भोजन करिए, हमारे साथ समय व्यतीत करिए, हमसे बातचीत करिए। और वह एक बहुत इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में होता था। तो स्वामी बहुत मुश्किल से 10 या 12 में से एक बार मानते थे। अब यहां अंधा क्या चाहे दो आंखें, यहां भगवान खुद बोल रहे हैं कि छात्रों को बोलो मुझे इन्वाइट करें। तो हम सब सीनियर स्टूडेंट्स आगे जाके बैठ गए और सबने विचार किया जैसे ही स्वामी निकलते हैं तुम स्वामी के चरण पकड़ लेना और हम हाथ जोड़ करके स्वामी से अनुरोध करेंगे, स्वामी हॉस्टल आइए, हॉस्टल आइए। आज तो लाइसेंस मिल गया है स्वामी को इनवाइट करने का, पर आज तो स्वामी हम सबको बोल रहे हैं कि मुझको बुलाओ। अब हम सब प्लानिंग करके बैठ गए। स्वामी का ठीक 4 बजे द्वार खुला, स्वामी बाहर आए और हमारी ओर देख करके मुस्कुराए। तो हम मुस्कुराए तो हमको लगा कि स्वामी का इशारा है यह कि अब तुम उठो और मुझको बुलाओ। तो हम सारे खड़े हो गए और स्वामी की ओर आने लगे। स्वामी ने कहा, ए इनडिसिप्लिन, बैठ जाओ। काय को खड़ा होता, हम सब की ओर देखा। हम सब थोड़े से जिसे कहते हैं डर के बैठ गए नीचे और स्वामी फिर मुस्कुराए, हाँ बोलो, हॉस्टल में इनवाइट करना चाहता? अरे मैं ही तो तुमको बोला मेरे को इनवाइट करने को, तुमको मैसेज मिला। हम सब फिर सोचे कि स्वामी हमारे साथ वापस एक खेल खेल रहे हैं। बहुत खुशी खुशी स्वामी से कहा, स्वामी आप कल हॉस्टल में आइए। हाँ हाँ मैं हॉस्टल में आता, कल जाओ, सब साफ सफाई करो, अच्छे से रखो। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन आया, एक बहुत बड़ा कलाकार आया, उसको मैं लेके आता। स्वामी ऐसे बोले। तो सोने पे सुहागा, एक तो भगवान आ रहे हैं और एक बहुत बड़े कलाकार को लेकर के आ रहे हैं। तो सब सोच में पड़ गए कि कौन कलाकार होगा। तो किसी ने कहा, एक बार स्वामी आए थे तुम्हें याद है, सुनील गावस्कर को लेके आए थे। दूसरे छात्र ने कहा, अरे जब मैं बैंगलोर में था तो मुझको याद है पंडित रविशंकर आए थे। तो हमने सोचा कि मान लीजिए अब इस बार स्वामी किसी को लेकर के आएंगे। तो स्वामी बोलते थे कि जो हॉस्टल है वह मेरा दूसरा घर है। तो हम समझे जब स्वामी अपने घर आएंगे तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा कलाकार है जिसको स्वामी लेकर के आ रहे हैं। फिर छात्र बोले, हो ना हो इस कलाकार को साथ में लेकर के आना है, इसीलिए स्वामी ने हमको कहा कि तुम बुलाओ। तो हम सब बड़े खुश थे, हम सोच नहीं रहे थे। हम हॉस्टल पहुंचे, अगले दिन सुबह से लग गए, पूरे हॉस्टल को धोया, साफ सफाई की, बिल्कुल फूलों से उसको हॉस्टल को सजा दिया, स्वामी को जाने के लिए रास्ता बना दिया, फूलों से पाट दिया रास्ता। और ठीक शाम को 4 बजे स्वामी पहुंचे और ब्यूगल से स्वामी का आने का अनाउंसमेंट हुआ। ब्यूगल बजे और स्वामी जो ही आए तो वेदोच्चारण के साथ स्वामी को अंदर ले जाया गया। तो क्या देखा कि स्वामी के साथ हॉस्टल के द्वार पर एक स्वामी से पहले
वही व्यक्ति जिनको हमने दशहरे के पर्व पर देखा, वही नया अंगवस्त्र सिल्क का और नई सिल्क की धोती पहने एक व्यक्ति खड़े हैं और बहुत डरे डरे से, सहमे सहमे से खड़े हैं। तो स्वामी जो ही आए, स्वामी ने उनको इशारा किया तो उनको अंदर आने दिया गया और उनको लेकर के स्वामी अंदर आ गए और उनको कोने में बिठा दिया। फिर जो छात्रों के, एक या दो छात्रों के भाषण हुए, उसके उपरांत स्वामी ने अपना प्रवचन दिया और जो ही प्रवचन समाप्त हुआ, स्वामी ने आरती के लिए इशारा किया। तो जो ही छात्र जिसको आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होना था, वो खड़ा हुआ तो स्वामी ने उसको अचानक बैठा दिया। फिर स्वामी वापस उठ करके गए माइक की ओर और वापस माइक ऊपर लगवाया और फिर बोले कि मैंने आज क्यों तुमको आने का आग्रह किया। तो हम सब समझ गए कि अब हमको समझ में आएगा कि स्वामी अब क्यों आने का आग्रह कर रहे थे। हम सब थोड़ा सा और आगे बढ़ गए और स्वामी के पास जाकर के बैठ गए बिल्कुल। तो स्वामी बोले, तुम्हें मालूम है पुट्टपर्ती में दशहरे वाले दिन एक बहुत बड़े कलाकार सुबह सुबह पुट्टपर्ती को आए और वे जब आए तो उनकी इच्छा थी कि वे स्वामी के सामने परफॉर्म करें, तो इसलिए मैंने उनको आज यहाँ बुलाया है। वे यहाँ आपके सामने हरि कथा प्रस्तुत करेंगे। तो हरि कथा आंध्र प्रदेश का एक लोक संगीत का तरीका है, जहां व्यक्ति एक हाथ में करताल और दूसरे हाथ में तंबूरा लेकर के मीराबाई की तरह भगवान विष्णु का गान करता है, भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन करता है और इस हरि कथा के दौरान कुछ कमेंट्री भी देंगे, कुछ श्लोक भी पढ़ेंगे, संस्कृत की कुछ सूक्तियां भी पढ़ेंगे, कुछ भजन भी सुनाएंगे और बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुति देते हैं भगवान विष्णु के जीवन की। तो उस व्यक्ति को बुलाया, वो माइक के सामने आए। वे बहुत डरे और बहुत सहमे हुए थे, पर स्वामी उनको इतनी कृपालु दृष्टि से देख रहे थे, स्वामी उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हो। और वे जैसे ही आकर के सामने खड़े हुए, स्वामी ने इशारा किया, हाँ शुरू कीजिए। अब उस व्यक्ति ने गाना शुरू किया। तो जो ही उन्होंने गायन शुरू किया, हमने स्वामी की ओर पलट करके देखा। क्यों पलट करके देखा? क्योंकि वह गायन में बहुत ही एवरेज किस्म के थे, बहुत अच्छे गायक नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि उनकी वृद्धावस्था की वजह से शायद आवाज भी थोड़ी क्षीण पड़ गई थी, थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, कहीं कहीं स्वर भी चूक रहे थे। पर हम स्वामी की ओर पलट कर देखते, क्योंकि अगर हम लोग भजन गा रहे हों और ऐसी कोई भी चूक हो जाए तो स्वामी और हमारी ओर एकदम तालम रोक करके देखते थे और एहसास दिलाते थे कि तुमने गलती करी और मैंने पकड़ ली। पर यहां वो जितनी गलतियां करे, स्वामी आंखें बंद करके ऐसे तल्लीन होकर के और ऐसे लीन होकर के झूम रहे थे, मान लो उससे बेहतर कोई गायक ही नहीं। अब वह उनका गायन समाप्त हुआ और उनका गायन समाप्त होने के बाद स्वामी माइक पर आए और फिर स्वामी ने कहा, तुम सब लोगों ने मेरी आज्ञा अनुसार मुझे बुलाया, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आज मैं क्यों हॉस्टल में आया और क्यों इस व्यक्ति को लेकर के आया। फिर स्वामी ने उनकी कहानी बताई कि यह व्यक्ति अति निर्धन समाज का है, इसको घर में खाने की 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं है, इसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है और इस अवस्था में इसने जीवन पर्यंत गांव-गांव जाकर के हरि कथा करी है और हरि कथा करने के बाद जो इसको व्यक्ति कोई चावल देता था, कोई वस्त्र देता था, कोई पैसा देता था, तो इसने फकीरी में अपना जीवन गुजारा, पर निरंतर पूरे जीवन भर इसने भगवान विष्णु का नाम लिया। अब जब इस बार दशहरे का पर्व आया तो इसको किसी गांव वाले ने सुझाया कि क्यों ना तुम जाओ और जाकर के अपने शहर से निकल करके, अपने गांव से निकल करके अलग अलग गांव जाओ और वहां हरि कथा का गायन करो। जब नवरात्रि का पवित्र पर्व होता है तो लोग तुम्हें गायन का मौका भी देंगे, तुम्हें इनाम भी मिलेगा, वस्त्र भी मिलेंगे और मिठाइयाँ भी मिलेंगी, अन्न भी मिलेगा। तो यह सोच करके वह अपने गांव से निकल पड़ा। पर वह जिस भी गांव में गया वहां कोई भी इसकी हरि कथा सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि गांव वाले या तो फिल्म देखना चाह रहे थे या ऑर्केस्ट्रा का गायन करना चाह रहे थे या कुछ और करना चाह रहे थे, पर इस व्यक्ति को किसी ने भी एंटरटेन नहीं किया। अंत में किसी एक गांव वाले ने कहा कि भाई तुम भूखे प्यासे इतने दिनों से भटक रहे हो, तुम क्यों नहीं पुट्टपर्ती चले जाते, वहां भगवान बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं दशहरे का, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, अगर तुम वहां जाओ और भगवान से प्रार्थना करो तो हो सकता है भगवान तुम्हें गायन का मौका दें। अब यह सोच करके उसने भगवान को मन ही मन नमन किया और वह बस में बैठ करके पुट्टपर्ती चला आया। सुबह 5:30 बजे उसकी बस, उसने उसको बस अड्डे पर उतारा। यह व्यक्ति ने अपनी एक पेटी उठाई, हाथ में तंबूरा था और अपने 2 लोग या 3 लोग जो परिवार के थे उनको लेकर के अंदर आया।
अब जो ही आश्रम में आया, गणेश द्वार से अंदर आया, तो क्या देखता है, वहां मेला लगा हुआ है। दशहरे का आखिरी दिन, कम से कम 25-30 हजार लोग होते हैं वहां, पांव रखने की जगह नहीं। वह डरते डरते पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम के सामने जो नीम का वृक्ष है, जो कि भगवान के मंदिर के सामने है, वहां पर जाकर के उसने अपना पेटी धर दी और थका हारा निढाल होकर के, बेचारा भूखा प्यासा था, रात्रि को भोजन भी नहीं मिला था, वह पेड़ के नीचे बैठ गया। जो ही पेड़ के नीचे बैठा तो अचानक आश्रम के मैनेजर कुटुम्बराव साहब आए और उन्होंने आते ही पूछा, आपका नाम यह है क्या? आप गायन करते हैं क्या? तो वो डर गया, उसने हाथ जोड़ लिए, मैं तो अभी यहाँ आया हूँ, बैठा ही हूँ, और कोई आकर के मेरे को पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा, साहब मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले, अरे भाई, सुबह से बाबा 2 बार या 3 बार तुम्हारे लिए पूछ चुके हैं, और उन्होंने ही मुझे अभी बोला कि जाओ और जाकर के देखो, उस नीम के पेड़ के नीचे वह व्यक्ति बैठे होंगे। इनको बहुत आदर पूर्वक इनको आश्रम में ले जाना, इनको नए वस्त्र देना, इसके बाद भोजन इनको उनके कमरे में ही करवाना, और उसके उपरांत इनको आदर पूर्वक आगे लेकर के जो पूर्णाहुति होनी है उसके लिए आगे बिठाना। और उस समय हमने इस व्यक्ति को देखा था जब कुटुम्बराव साहब इनको लेके आए। तो स्वामी बोले, अब चूंकि दशहरे के दिन तो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम पहले से ही था, तो मैं इसको मौका नहीं दे सकता था, पर इसकी दिली इच्छा थी और इसकी प्रार्थना थी कि इसने उम्र भर भगवान विष्णु का गान किया है और यह आज बाबा के सामने गान करना चाहता था। तो उस आदमी के बहाने मैंने तुम लोगों से कहा कि मुझसे अनुरोध करो और मुझको अपने हॉस्टल में बुलवाओ। तो आज केवल इस भक्त के लिए मैं तुम्हारे हॉस्टल चल के आया हूँ। तुम लोगों को लग रहा होगा कि इसका गायन बहुत अच्छा नहीं था, पर भगवान जो है वह गाने की क्वालिटी नहीं देखते, भगवान उसके हृदय की भावना देखते हैं और किस भावना से ओतप्रोत होकर के उसने गायन किया। और फिर जो बाबा ने बात बोली वह हमारे दिल को बिल्कुल छू गई और आज तक मानस पटल पर अंकित है। स्वामी बोले, जब कोई गवर्नमेंट के यहाँ भी काम करता है तो 60 वर्ष जब उसके पूर्ण हो जाते हैं तो उसके उपरांत उसको पेंशन दी जाती है। अब इस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत भगवान विष्णु की सेवा अर्चना करी, उनका गान किया, और अब यह जीवन के उस पड़ाव पर आ गया कि अब यह शारीरिक रूप से शिथिल हो गया है, अब इसका गायन उतना अच्छा नहीं रहा, इसको लोग मौका नहीं देते। तो ऐसे समय पर क्या मैं इसको छोड़ देता? तो मैंने ही इसको अपनी ओर बुलाया और आज से यह व्यक्ति यहीं आश्रम में रहेगा। इसके खान पान, इसका रहन सहन, इसके वस्त्र, इसके बच्चों की एजुकेशन, यह सब काम बाबा देखेंगे। और आज से इसकी पेंशन शुरू हो गई। इसको कुछ काम नहीं करना, इसको केवल मात्र भगवान के दर्शन करने हैं और भजन का आनंद लेना है। तो देखिए, यह है प्रेम बाबा का कि चाहे व्यक्ति जैसा भी हो, अगर उसके दिल में भगवान के प्रति प्रेम है और उसने उस प्रेम से अभिभूत होकर के गायन किया, तो स्वामी ने उसको उसके जीवन के पड़ाव पर, आखिरी पड़ाव पर भी नहीं छोड़ा और उसको अपना लिया और उसकी पेंशन दे दी। और ऐसी पेंशन कि मैं पास आउट होने के बाद, लेक्चरर बनने के बाद कई सालों तक जब पुट्टपर्ती आता था तो उस व्यक्ति को वहाँ देखता था जो बिल्कुल पीछे बुजुर्ग लोगों के साथ हाथ जोड़ करके हमेशा बैठा होता था। उसके चेहरे पर शांति का भाव होता था और उसको देख करके लगता था कि यह बाबा का प्रेम का एक जीता जागता उदाहरण है। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई ट्रस्ट मध्य प्रदेश के ट्रस्टी, इंदौर निवासी श्रीमान त्रिभुवन सचदेव जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के महू निवासी एवं कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई निवासी पशु चिकित्सक डॉक्टर श्रीमान DS शिवडेकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भेंट वार्ता
हमारे स्टूडियो में 6 जून सन 2012 को रिकॉर्ड की गई थी। ओम श्री साई राम। रेडियो साई के सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा अभिनंदन। रेडियो साई के इस कार्यक्रम में आज हम आपकी भेंट करवा रहे हैं डॉक्टर DS शिवडेकर जी से, जो कि मध्य प्रदेश महू से आए हैं। डॉक्टर शिवडेकर जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। साई राम। मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर DS शिवडेकर ने मास्टर्स ऑफ वेटनरी साइंस के अंदर में अपना क्वालिफिकेशन प्राप्त किया है। उसके उपरांत उन्होंने वेटनरी साइंस में ही माइक्रोबायोलॉजी के अंदर में विशेष अध्ययन भी किया है। वे महू में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मध्य प्रदेश के अंदर में संचालक के पद से निवृत्त हुए। उसके उपरांत उन्होंने हरियाणा के अंदर में इंडोवैक्स प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर के ओहदे से भी वे निवृत्त हुए हैं। बहुत लंबे समय तक वहाँ पर कार्य किया है और इस समय वो बाल विकास के गुरु के रूप में भिलाई में मध्य प्रदेश के अंदर में कार्यरत हैं, भगवान बाबा की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर शिवडेकर जी, हम बहुत प्रसन्न हैं कि आज आप रेडियो साई के इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहेंगे कि भगवान बाबा से आपका परिचय किस प्रकार से हुआ और आपने साई संगठन में प्रवेश किस प्रकार से किया और किस सन में किया? साई रेडियो के प्रबुद्ध श्रोताओं को सप्रेम साई राम। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज इस पवित्र स्टूडियो में उपस्थित हूँ और अपने अनुभवों को आपको बता रहा हूँ। सन 1974 में मैं महू में पदस्थ था और वहाँ पर आदरणीय डॉक्टर VK गोकाक वहाँ पधारे हुए थे। उन्होंने महू समिति का उद्घाटन किया। जब उद्घाटन किया तब मैं समिति का सदस्य नहीं था, मैं एक सामान्य नागरिक के रूप में वहाँ पर बुलाया गया था। कार्यक्रम जहाँ चलता रहा उसी बीच में अनाउंसमेंट हुई, हमने इस शहर के कुछ लोगों को कोऑप्ट किया है सदस्य के रूप में। तो मेरे नाम की घोषणा हुई कि मुझे साई समिति का सदस्य के रूप में कोऑप्ट किया गया है। तो मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं इस प्रकार से आमंत्रित किया गया इस सदस्य बनने के लिए। मैंने बाबा को चरण स्पर्श किए, गोकाक साहब को प्रणाम किया और मैंने इस संगठन में का काम करना शुरू किया। और फिर समिति में जाना शुरू किया। भजन हो रहे थे, काफ़ी भीड़ होती थी। हमारे कन्वीनर साहब थे, सेठी साहब, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अभी आपको ड्यूटी देते हैं, जितने श्रोता आते हैं उनके जूते चप्पल आपको देखना है। अच्छा, तो ये पहले आपको ड्यूटी मिली वहाँ पे कि जितने भी भक्तगण आएंगे समिति में भजन के लिए, उनके जूते और चप्पलों को सही तरीके से लगाने की। तो मुझे इसमें कोई ऐसा रंज नहीं हुआ। मुझे लगा कि भाई जो भी काम भगवान ने दिया हुआ है जी उसको करना चाहिए। तो मैं सब लोग भजन गाते रहे, आरती करते रहे, वहाँ पर प्रवचन सुनते रहे और मैं जूते देखता रहा। ऐसा बहुत दिन तक चला। और जैसे मेरे परिचय में बताया गया, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, इसलिए जानवरों से डरता नहीं हूँ। तो एक दिन मैं साइकिल से घर पे आ रहा था तो 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि वो सांड तो लड़ते रहते हैं, उनका काम है, मेरा क्या उनसे लेना देना। तो अपना साइकिल से चलता रहा। तो उतने में से एक सांड ने जैसे कोई टारगेट बनाकर किसी के पीछे दौड़ा जाए, ऐसा सांड मेरे पीछे दौड़ा। मुझे भान हो रहा कि मेरे पीछे सांड दौड़ रहा है, पर मुझे कोई भय नहीं लगा। और सांड ने आके टक्कर भी लगाई, पर टक्कर लगाई वो साइकिल के पीछे कैरियर था, उस कैरियर को सारा का सारा फोर्स लगा और साइकिल नीचे में गिर पड़ा। पर सांड ने मुझे कुछ नहीं किया, मुझे चोट भी नहीं आई, साइकिल में कुछ नुकसान नहीं हुआ। सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। कुछ लोगों ने मुझे पूछा तो मुझे पता लगा कि मेरे जूते चप्पल की रखवाली की उसका सारा का सारा मुआवजा स्वामी ने मुझे दे दिया। बहुत सुंदर। और मैं इसी कि स्वामी ने मुझे जीवदेवन दान दिया है, तो मैंने उसी दिन अपने जीवन को स्वामी को समर्पित कर दिया आपने कि भगवान बाबा हमारी रक्षा करेंगे जब हम उनकी सेवा करेंगे तो। और न केवल मैंने, मेरे साथ में मेरे पत्नी ने भी। अच्छा। वो संस्कृत की विशेष उनका अध्ययन है और वो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। अच्छा। तो हम दोनों ने
अपना जीवन समर्पित कर दिया और हम इस संगठन में दोनों साथ में काम करने लगे। तो संगठन में जुड़ने के बाद में किस क्षेत्र में अपना विशेष आपने ध्यान दिया? ऐसे वो 1974 से लेकर जब तक मैं संचालक के पद पर वहाँ पर कार्यरत था, 20 साल लगभग, 74 से 94 तक मैंने मध्य प्रदेश में ही सेवा की। अच्छा। फिर बाद में 1994 के बाद में मुझे इंडिवास प्राइवेट लिमिटेड में काम करने का मौका मिला हिसार में। तो 16 साल लगातार मैंने फिर हिसार हरियाणा में काम किया। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद फिर से मध्य प्रदेश में आया हूँ, आजकल भिलाई में हूँ। हमने अपना सेवा का क्षेत्र जो ढूंढा वो बाल विकास, एजुकेशन ह्यूमन वैल्यूज़, एजुकेयर, स्टडी सर्कल, जगह जगह गायत्री के हवन करवाना देहातों में, और हमारी कुछ पारंपरिक व्रतों पूजाओं होती है उसको संगठित करना, ऐसे कार्यक्रम में हम विशेष रूप से रुचि लेने लगे। तो पर आप वेटरनरी डॉक्टर होकर आप इन कार्यों के अंदर में जब आप संलग्न हुए तो कुछ आपको मुश्किलात नहीं हुआ? गीता को दोबारा पढ़ना, उसको लोगों को समझाना, रामायण को पढ़ना या यज्ञ करवाना, उसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? बात ऐसी हुई कि जब संगठन में आए तो बड़े बड़े विद्वानों के साथ में फिर परिचय हुआ, उनके प्रवचन सुने। तो एक बार ऐसे प्रवचन सुन रहे थे, भोपाल में हमारे ट्रस्ट के एक कन्वीनर थे, बाबा के परम भक्त थे, बाबा के परम सखा जैसा उनका संबंध था। तो एक दिन बोल दिया उन्होंने, और बात मुझे बहुत गहरी लगी वो। अच्छा, अंतःकरण में उतर गई जैसे। पर उन्होंने कहा कि यू गिव मी योर अवेलेबिलिटी, आई विल गिव यू एबिलिटी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कि तुम अपना समय मुझे दो तो क्षमता मैं दूंगा। अच्छा। मुझे कोई ऐसा लगा कि जैसे मुझे मंत्र मिल गया हो। जैसा आपने मुझसे कहा कि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, साइंस मेरा विषय है, अध्यात्म में मेरी विशेष रुचि नहीं रही, पर जब मैंने काम देना शुरू किया और बच्चों ने पढ़ाना शुरू किया तो जैसे मुझे कोई प्रॉम्प्टिंग कर रहा है, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, प्रवचन पढ़ो, इस प्रकार से धीरे धीरे करके मैंने अपनी क्षमता को इसमें मैं बढ़ाता रहा और स्वामी ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी इस काम को करने के लिए। दूसरी प्रेरणा मुझे मिली जिसमें मेरा स्वार्थ है। वो स्वार्थ ऐसा था कि जब मैं प्रवेश किया तब मेरी उम्र 30-35 साल की थी, बच्चे छोटे छोटे थे और बच्चों में अच्छे संस्कार भी होना चाहिए, उनका करियर भी है, हर माता पिता की ये चिंता होती है। तो बाबा ने एक प्रवचन में ऐसा कहा कि यू लुक टू माई चिल्ड्रन, तुम बाल विकास के बच्चों को देखो, यू लुक टू माई चिल्ड्रन, आई विल लुक टू योर चिल्ड्रन। बाल विकास के बच्चों का ख्याल करिए और भगवान बाबा हमारे बच्चों का ख्याल करेंगे। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता सौदा है ये। तो मैंने फिर उसको बहुत प्रैक्टिकल दिया कि स्वामी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर ले ली, उस हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार से ये बाल विकास के कार्यक्रम हम लोग जी जान से जुड़ गए, उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिली। ये कार्यक्रम स्वामी ने 1969 में बाल विकास के माध्यम से के नाम से लेना शुरू किया। और स्वामी की विशेषता ये रही कि कोई कार्यक्रम एकाएक नहीं देखते थे, वो देखते थे कि किस चीज़ का एक्सेप्टेंस होगा। स्वामी ने 14 साल तक स्वयं की घोषणा नहीं की। स्वामी ने 14 साल के बाद जब देखा माहौल तब घोषणा की कि मैं सत्य साई बाबा हूँ। तो स्वामी का घोषणा करने का भी एक तरीका होता था। एक समय एक तो स्वामी ने 1969 में साई डिवोटीज़ के बच्चों के लिए बाल विकास शुरू किया। और फिर जब उसका एक्सेप्टेंस देखा तो स्वामी ने 1981 में इसका विशाल रूप दिया, जिसका उन्होंने एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू नाम रखा, जो सबको पढ़ा जा सके, जो चाहे सत्य साई बाबा का भगत हो या नहीं हो, स्कूल में पढ़ाया जा सके। इस प्रकार से उसका एक ढांचा बना दिया। उसके साथ भी हम परिचित हो गए। फिर स्वामी ने और कुछ साल के बाद में जब एक्सेप्टेंस देखा, न केवल भारतवर्ष में, सारे दुनिया में इसको सत्य साई एजुकेशन कहते हैं। सत्य साई एजुकेशन के हिसाब से जब देखा तो स्वामी ने सन 2001 में इसका विराट रूप दे दिया, एजुकेयर। एजुकेयर को मैं ऐसा समझता हूँ, देखिए 4 वेद है, ऋग्वेद है,
यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, 4 वेद तो है, पर ये वेद सैद्धांतिक है। आप इसके गहराई में जाओ और गहराई में जाके आप समझो, ये आपकी क्षमता है, ज्ञान तो सारा का है पर प्रयास सारा आपका है। और स्वामी ने एजुकेट कैसा कर दिया, सारे वेदों में जितने सूत्र है इसको प्रत्यक्ष आचरण में कैसे लाओगे, ये सारी की सारी बातें स्वामी ने बहुत सरल करके एजुकेट के माध्यम से की। हम समझ नहीं रहे कि स्वामी ने विश्व शांति की कुंजी हमारे हाथ में सौंप दी, कुछ नहीं करने का, केवल आपके 5 ज्ञानेंद्रियों का ठीक ठीक उपयोग करो। आँख अच्छी देखे, कान अच्छा सुने, हाथ अच्छा काम करे, आप 5 ज्ञानेंद्रियों का अच्छा उपयोग करो, विश्व शांति अपने आप हो जाएगी। स्वामी ने इतना गहन बात इतने सारे तरीके से एजुकेट के माध्यम से बना, इस बात को बहुत कम लोग समझ रहे हैं। बहुत सुंदर कहा आपने कि आपने जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, अगर उनका ही पूर्णतः सदुपयोग हम करें और उन्हें पवित्र रखें तो वही हमारा एजुकेयर है। उससे हमारा ही नहीं तब्दीलन होगा बल्कि पूरा विश्व परिवर्तन कर सकता है। बहुत सुंदर बताया आपने। पर आपने ये 3 चीज़ें बताई। एक तो आपने कहा बाल विकास के अंदर में जो एक हमारा विशेष कार्यक्रम है, एक EHV है, एक एजुकेयर है। ये कुछ श्रोताओं के मन में ये संदेह उठ सकता है, क्या ये अलग अलग हैं या क्या ये एक ही चीज़ है या एक के अंतर्गत दूसरा आता है? किस प्रकार से आप समझाना चाहेंगे श्रोताओं को? स्वामी ने स्वयं को सनातन सारथी कहा कि मैं वही श्री कृष्ण हूँ, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया भगवद गीता में, सर्गाणाम आदि अंतश्च मध्यम च वे अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादम प्रवितामहम। इस श्लोक को थोड़ा गहरे से समझो तो सारा का सारा बाल विकास का सारा फिलॉसफी समझ में आएगा। स्वामी कह रहे अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अरे बच्चों को देना है सबसे श्रेष्ठ चीज़ दो ना, छोटी मोटी चीज़ क्यों दे रहे हो? जो विद्याओं की विद्या है वो अध्यात्म विद्या को दो ना, उसको क्यों उनको वंचित कर रहे हो? उसका फायदा क्या होगा? वादम प्रवृत्तामहम, कभी ऐसा वाद होगा ना कि कौन सी शिक्षा अच्छी है, तो इसी बात की जीत होगी कि अध्यात्म शिक्षा सबसे अच्छी है। ये सारे कैसे गीता के सूत्र से दिया। और एक जगह गीता के तारीफ में ऐसा कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या सर्व पद्मनाभस्य मुख पद्मे मिश्रिता। ये गीता जो दी है पूजा करने के लिए दी है। गीता सुगीता कर्तव्य, हाँ काम करने के लिए दी हुई है, एजुकेट काम करने के लिए दिया है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, अरे बहुत सारी किताब पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ये गीता का ही अध्ययन करो। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जो प्रकट हुई है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ठीक बात। ये बाल विकास ये ऐसा ही है। शुरुआत में स्वामी ने 1969 में डिवोटीज के बच्चों के लिए बाल विकास किया। कुछ श्लोक रखे, कुछ उस भजन लिख रखे, कुछ उन्होंने कहानियाँ रखी, कुछ गेम्स रखे। इस प्रकार से कहा, स्वामी ने कहा कि बच्चों को पढ़ाओ। देखो फिजिक्स पढ़ाना आसान है, केमिस्ट्री पढ़ाना अच्छा आसान है, अलजेब्रा पढ़ाना है आसान है, अध्यात्म पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। और बच्चों को 5-6 साल का बच्चा है उसको कैसे पढ़ाएंगे? स्वामी ने टेक्निक दिया, गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रोमजस्तम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बाबा ने कहा बच्चों के साथ गाओ, उनके साथ खेलो, उनको कहानी बताओ, उनका ध्यान लगाओ। ये सारी के सारी टेक्निक 5 टेक्निक बाबा ने दी। और हमारा 1969 में बाल विकास शुरू किया। 1969 से लेकर 1981 तक स्वामी ने लगभग 12 साल तक एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, भारतवर्ष में भी बाहर में भी। स्वामी ने कहा कि केवल डिवोटीज तक है क्यों, इसको फैलाओ, इसको फैलाओ। स्वामी ने 1981 में एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज शुरू कर दिया, जो सारे के सारे स्कूल्स में हम लागू कर सके। और विशेष रूप से उसमें व्याख्या होने लगी कि सत्य क्या है, सदाचार क्या है, शांति क्या है, प्रेम अहिंसा क्या है। इस प्रकार से विशेष विवेचन लेना शुरू किया और ये बड़ा पॉपुलर सी बात हो गई 1981 के साथ बाद में। और फिर स्वामी ने 2001 में इसका बहुत विशाल रूप दिया, जिसको हम लोग एजुकेट कहते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये गंगा जी गंगोत्री से निकली और गंगा सागर में जाके मिली, विशाल हो गई।
कहाँ का जल पवित्र है, कहाँ का जल पवित्र नहीं है। दोनों ही सब जगह पवित्र है। इस प्रकार से इसमें भेदभाव करना मुश्किल है। ये सारी की सारी बात एक ही है। ये विशेष ये प्रश्न स्वामी से पूछा भी गया था 2001 में, स्वामी ने अच्छा उत्तर दिया है। ये सारी के सारी स्वामी एक है। इसका मुख्य सूत्र है अध्यात्म सूत्र ही है। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के महू निवासी एवं कालांतर में छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई निवासी पशु चिकित्सक डॉक्टर श्रीमान DS शिवडेकर जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। मीडिया सेंटर की तरफ से उनसे वार्तालाप कर रहे थे डॉक्टर दीपक आनंद। आज का हमारा साई प्रेमवाणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें अपने सुझाव एवं परामर्श व्हाट्सएप पर भेजना न भूलें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 93 258 258 और एक बार 93 93 258 258। हिंदी भाषा के ये सारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पे भी सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने विचार सबसे शेयर करें। हम सब पर हमेशा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा सर्वस्व अर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। सधन्यवाद। जय साई राम।